بلیک لا ڈکشنری کو استعمال کر کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا نہیں جاتا، وہاں اس طرح کے مجرموں کو سزا ملتی ہے جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ معصوم ہے، مطلب کہ یہ معصومیت میں ملک کا بیڑا غرق کر گیا۔ پہلے کہتے تھے نالائق ہے، نااہل ہے، اس کے بعد چوری سامنے آئی تو معصوم ہے۔ سائفر کا ڈرامہ سامنے آیا، بھئی آئین توڑ دیا، اسمبلی توڑ دی، وزراء سے توڑوا دی، اسپیکر سے آئین شکنی کروائی، معصومیت کا لبادہ اڑوا دیا۔ بھئی جب مرضی لاڈلا بنا دو، جب مرضی معصوم بنا دو۔ فورن فنڈنگ کرنے والا معصوم ہے کیا؟ ریاست پر حملہ کرنے والا معصوم کیسے ہے؟ 9 مئی کو پورے ملک میں آگ لگانے والا معصوم ہے کیا؟ سپریم کورٹ نے خود فیصلہ دیا، اس نے آئین توڑا تو پھر معصوم کیسے ہے؟ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کے تاک تاک کر بانی پی ٹی آئی پروار عدالت کے لیے بھی سوالات اٹھا دیے۔ کہتی ہیں پہلے لاڈلا اب معصوم کہہ کر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں لوٹ مار اور کرپشن کا حساب تو دینا پڑے گا۔ یعنی یہ سائفر جو تھا یہ ایک چھوٹی میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے، جس میں اعظم خان تھے اینڈ فیو ادر کیبنٹ ممبرز جو کہ 4-5 تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں چھوڑ دو آپ اس کو منٹس میں ریکارڈ کر لو۔ تو سپریم کورٹ کیونکہ فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن ہے اور جیسا میں نے کہا بے حد تعظیم اور بے حد احترام کے ساتھ ہم ان آنریبل ججز کی جن کی میں قطعی طور پر یہ ایک بڑی حد تک بحث وہ ہے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینس۔ سائفر کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی حکومت نے سیاست کی، پی ٹی آئی بند لفافوں میں کرپشن کرتی آئی ہے، کیا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے رول آف لا کو پس پش ڈال دیں؟ سینئر لیگی رہنما ملک احمد خان کی گھن گرج، کہا جس کے حق میں فیصلہ ہو وہی لاڈلا ہوتا ہے، عدالتی فیصلہ صرف ضمانت تک رہتا ہے تب بھی سوال اٹھیں گے، جب سیاسی جماعت عدم ہوگی تو الیکشن کمیشن اسے کیسے نشان دے گا؟ کریڈیبلٹی ہے اس کو ایٹ سٹیک ڈال دیتا ہے، اور پاکستان کے سائفرز جو کہ کورسپونڈنس ہے، آفیشیل اور سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس کی جو جس طریقے سے پاکستان کے جلسوں میں اس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، کیا پاکستان کے ہائی کمیشنز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی خط و کتابت ان ممالک سے ایٹ سٹیک نہیں آئے گی؟ ہم یہ چیز تصور نہیں کرتے کہ ایک شخص جس کو ہم معصوم کہہ رہے ہیں وہ تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی ہے۔ ایک نااہل شخص کو معصومیت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے خارجہ پالیسی کو داؤ پر لگایا۔ محسن شاہ نواز رانجھا کے مخالفین پر تنقیدی نشتر، کہا کہ جس شخص کو معصوم کہا جا رہا ہے وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ماضی میں پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری، کل آخری روز تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اور آزاد امیدوار بڑی تعداد میں آر او آفیسز کا رخ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی بھی بڑا رہنما تاحال کاغذات نامزدگی جمع نہ کرا سکا، جبکہ الیکشن کمیشن نے تاریخ میں 2 دن کی توسیع کر رکھی ہے۔ عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 767 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر 89 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ صوبائی اسمبلی نشستوں پر 2129 امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے۔ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی، صدر نون لیگ شہباز شریف کا 2 قومی 2 صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ، سابق وزیر اعظم نے NA 123 اور NA 132 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ بانی تحریک انصاف کا NA 122 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ، سابق وزیر اعظم کے وکیل رائے محمد علی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے 27 دسمبر کی تاریخ دے دی۔ انتخابی میدان سجنے کو تیار، کاغذات جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ NA 117 سے صدر IPP عبدالعلیم خان اور لیگی رہنما ملک ریاض نے کاغذات جمع کرا دیے۔ پیپلز پارٹی کے سید آصف ہاشمی کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے۔
मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक, ख्वाहिश नहीं, ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। नून लीग का IPP के रहनुमाओं को मशवरा, कहा कि सीट एडजस्टमेंट के लिए दी गई मुकम्मल फहरिस्त पर इत्तेहाद मुमकिन नहीं। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिकावान के हलके में भी सीट एडजस्टमेंट का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। बागों का शहर फिर फजाई आलूदगी का गढ़ बन गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़ायद रिकॉर्ड। ट्रैफिक और फैक्ट्रियों के धुएं शहर की फिजा को आलूदा करने लगे। स्मोक पर काबू पाने के इकदामात की रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक का सबब बनने वाले इकदामात पर पाबंदी आयद। रिलीफ कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए। शहर ताहाल तजावजात माफिया के निर्गे में। मून मार्केट समेत शहर की अहम कारोबारी मराकज़ में तजावजात का मुकम्मल खात्मा ना किया जा सका। रायवंड के मुख्तलिफ इलाकों में भी ताहाल तजावजात की भरमार। शहरियों का हुकूमत से नोटिस का मुतालबा। तजावुजात माफिया के खिलाफ ज़िले इंतजामिया के ऑपरेशन का चौथा रोज़। कॉलेज रोड, बरकत मार्केट और शाह आलम मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 25 दुकानें सील और 28 अफराद गिरफ्तार। सामान के 3 ट्रक जब्त किए गए। जालसाज माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। फूड सेफ्टी टीमों का कोट राधा किशन में वाक़या यूनिट पर छापा। 1000 किलो मिलावटी केचप, 200 किलो मजरे सेहत मेयोनीज तल्फ। यूनिट सील। खुले रंगों, मसनूई फ्लेवर्स और ममनुआ अज्जा की मिलावट से केचप और मेयोनीज तैयार की जा रही थी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब की नाअहली 1,18,911 गाड़ियों से टैक्स वसूल ही न किया। खजाने को 1 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचा। ETO लाहौर 1 अरब 30 करोड़ 97 लाख से ज़ायद की रिकवरी न कर सके। महकमे खजाना पंजाब ने आइंदा माली साल के लिए सरकारी महकमों से बजट तजावीज़ मांग ली। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तमाम अहम सरकारी अफसरों को हिदायत जारी। 31 दिसंबर तक सरकारी महकमों को बजट ट्रेनिंग और सेमिनार का इनेकाद करने की हिदायत। कायमा कमेटी बराए उमूर कानून साजी और प्राइवेटाइजेशन का 12वां इजलास। सुपीरियर कॉलेज लाहौर के रेक्टर की तकर्रुरी की मंजूरी दी गई। लाहौर और काज़िकिस्तान के शहर तुर्किस्तान को सिस्टर सिटीज़ करार देने पर भी मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर सैयद असफर अली नासिर ने इजलास की सदारत की। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 1562 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,44,983 हो गई। मनशियात फरोशों के खात्मे के लिए पुलिस मुतहरिक। रवा साल 10,000 से ज़ायद मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों से 6,000 किलो चर्स और 162 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद हुई। CCPO की कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी गई। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। अब तक बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 21,530 मुकदमात का इंदराज। CTO लाहौर का बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। पुलिस खिदमत मराकज़ सर्विसेज की फराहमी में सबसे आगे। पिछले 5 सालों में 1 करोड़ शहरियों को पुलिस सर्विसेज फराहम की गई। CTO अमारा अथर का कहना है कि रवा साल 1 करोड़ 13 लाख शहरियों ने पुलिस सर्विसेज से फ़ायदा उठाया। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के अमल में तेजी। गुज़श्ता रोज़ लाहौर समेत सूबे भर में 1,73,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। तर्जुमान के मुताबिक 1,05,000 से ज़ायद शहरियों ने बज़रिया ऑनलाइन लाइसेंस हासिल किए।
सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान के एजाज में तकरीब। लाहौर पुलिस के 50 ASIs को नए ओहदे के रैंक्स लगाए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नए ओहदे के रैंक लगाए। SP सिटी काजी अली रजा का सिटी डिवीजन के अहम मकामात का दौरा। दफ्तर इलेक्शन कमीशन समेत अहम दफातर के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DSP हाफिज उबैद और मुतलका SHOs ने ड्यूटी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब से सिख कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात हुई। बलीगुर रहमान ने वफ्द को गवर्नर हाउस की तारीखी हैसियत से आगाह किया। वफ्द में अमेरिका, कनाडा, तालीम, अदब और बिजनेस के शोबों से वाबस्ता सिख कम्युनिटी के अफराद शामिल थे। DIG ऑपरेशन से मसीही मजहबी रहनुमाओं की मुलाकात। क्रिसमस पर सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात पर गुफ्तगू। सैयद अली नासिर रज़वी ने कहा, पुलिस मसीही बरादरी और उनकी इबादतगाहों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेगी। हजूरीबाग में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब। सेक्रेटरी बल्दियात अहमद जावेद काजी और कमिश्नर लाहौर की शिरकत। CEO LWMC बाबर साहबदीन ने मसीही मुलाजिमीन के हमरा केक काटा। उधर वासा हेड ऑफिस में भी क्रिसमस केक कटिंग की तकरीब हुई। MD वासा गुफरान अहमद ने तमाम मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। क्रिसमस के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। CCPO ऑफिस में मसीही मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। मुलाजमीन में ईदी तकसीम की गई और केक भी काटा गया। उधर वाल्टन हेडक्वार्टर्स में SP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा ने मसीही एहलकारों के साथ क्रिसमस केक काटा। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में क्रिसमस के हवाले से तकरीब। DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। मसीही एहलकारों के हमरा केक काटा। इमरान किश्वर और डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी ने ईदी भी तकसीम की। क्रिसमस के खुशियों में शरीक होने के लिए जमात इस्लामी का अहसन इक़दाम। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की जानिब से हल्का के मसीही वर्कर्स के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स का एहतमाम किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की खसूस शिरकत। हाईकोर्ट बार में मसीही मुलाजमीन ने क्रिसमस का केक काटा। एडवोकेट ज़ीशान सुलहरी ने मसीही मुलाजमीन में ईदी तकसीम की। उधर एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में भी क्रिसमस केक कटिंग की तकरीब सजाई गई। रेलवे के मसीही मुलाजमीन क्रिसमस पर भी तनख्वाहों से महरूम। रेलवे मुलाजमीन को गुज़श्ता माह की तनख्वाह ताहाल न मिल सकी। तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी पर मुलाजमीन रेलवे दफातर में सरापा एहतजाज है। आला हुकाम से तनख्वाहों की जल्द अदायगी का मुतालबा कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में इंतखाबात का मेला कल सजेगा। प्रेस क्लब के मेंबरान कल हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जर्नलिस्ट, प्रोग्रेसिव और पायनियर्स के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और बड़ा झटका। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नुमान अली अपेंडिक्स का शिकार होने के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। डॉक्टर ने स्कैन और टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद अपेंडिक्स सर्जरी तजवीज़ की, जबकि नुमान अली की अपेंडिक्स सर्जरी मुकम्मल हो गई। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। 7 बेग टीम की क़यादत करेंगे। मेगा इवेंट 19 जनवरी से 11 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में खेला जाएगा।